Recording is there. Okay. So that is the whole idea of your studying this, how the sweat formation takes place. And idea is that we should not allow the sweat to form, which can damage any cargo, whether it is steel can get rusted, whether it is paper, bagged cargo, even bulk. So these things are important. So the knowledge of how the sweat formation takes place and how it can be avoided. So sometimes there is a question on this also. Now this is very simple. You have studied what is sweat, what are the types of sweat, but now you have to come a little bit higher up, that how can you save the cargo, especially the steel cargo, from condensation during the passage. Now during loading we have taken enough care. We have put dunnage, we have put side battens are there for the air circulation. So now the problem is that we should be able to deliver the steel also in the same condition the way it was loaded, not that we loaded shining and it is, when we are discharging, it is becoming rusted due to condensation. You all know, isn't it? Any metal, if you expose to atmosphere and if there is a moisture present, so you will see that rust formation takes place. So ये आपको भी थोड़ी सी knowledge होनी चाहिए. चलो, let's start with the, I hope most of you are here. So sweat, how the sweat formation takes place. Anybody, any idea what is this sweat? What do you understand by sweat and how the sweat forms? Very basic. आपके मन में क्या आता है? Anybody? The ship sweat and cargo sweat. हाँ जी, go ahead. या बोलिए, कैसे, क्या आता है आपके मन में when we talk about, yeah, this condensation will take place or sweat formation will take place inside the hold. I think most of you must have gone inside the hold and you see you start sweating. क्यों होता है? Sir, if the outside temperature is high or low, or inside temperature is low or high, so that causes the sweat. Okay, कुछ any basic reason, ये क्या चीज़ है, कैसे form होता है? I think you are driving a car. Most of the time when you drive car in rainy season, you try to close all the glasses, and then you see आपके आगे की जो विंड स्क्रीन है उसके ऊपर मॉइस्चर. वेंटिलेशन नहीं होता, इसीलिए स्वेटिंग होता है. कंडेंसेशन. स्वेटिंग होता क्यों है? स्वेट फॉर्मेशन क्यों होता है? सर मॉइस्चर की वजह से. ड्यू टू कंडेंसेशन. Moisture content. ड्यू टू कंडेंसेशन. देखो आपको सिंपल एग्जांपल एक कार का, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी ड्राइविंग कार्स. तो कार में जब बैठते हो, देखो ना, हम उसके अगर सब कुछ शीशे बंद कर दें तो सडनली फिर अंदर की तरफ से एक बंदा कपड़ा उठा के अंदर से कांच को साफ कर दो. बाहर से तो आपका वाइपर लगा, अंदर से वो फॉर्मेशन क्यों होती है, इज़न्ट इट? सो इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि स्वेट फॉर्मेशन कैसे होती है. अब आप अंदर कार में बैठे हो, आपका जो ब्रेथ है, जब आप अंदर की कार का जो एटमॉस्फेयर है वो हवा जो है गर्म है, इज़न्ट इट? अब आपने सब कुछ बंद कर दिया तो अंदर की हवा आपकी गर्म है, एंड बाहर की जो हवा है, बाहर बारिश हो रही है या कुछ भी है, बाहर की हवा ठंडी, इज़न्ट इट? अब बाहर से तो कांच आपका ठंडा हो गया, गाड़ी चल भी रही है. अब ये जो गर्म हवा जैसे ही आपके कांच को टच करती है जाके, अंदर की जो गर्म हवा, व्हेन इट टचेस द ग्लास, इट इमीडिएटली स्टार्ट्स गेटिंग, ठंडा होना शुरू हो जाती है, बिकॉज कांच ठंडा है बाहर से. एंड व्हेन इट इज कूल्ड एट सर्टेन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर है जिसे हम ड्यू पॉइंट कहते हैं, उससे ज़्यादा ये ठंडी हुई तो इसके अंदर जितना वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाता है आपके कांच के ऊपर. सिंपल. क्यों? कि बाहर से जो आपका कांच है वो ठंडा हो रहा है, अंदर की हवा गर्म है, गर्म हवा ने जैसे ठंडे कांच को टच किया वो कंडेंस हो जाती है. सो दिस इज बेसिकली हाउ योर स्वेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. चलो, वी विल सी दिस. उससे पहले देखिए, ये जो स्वेट फॉर्मेशन है या कार्गो डैमेज है, मॉइस्चर डैमेज इज द सोर्स ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कार्गो क्लेम्स.
अब मैंने आपको ये भी बताया था व्हेन वी स्टार्टेड होल्ड प्रेपरेशन एंड प्रेपरेशन टू रिसीव द कार्गो, दैट our main job on the ship is that we should not get the cargo damage in any condition, because there will be a lot of cargo claims, very heavy, often involving bagged or bulk agriculture products. Now claimants जो हैं, जो जिसका कार्गो होता है, जो consignees हैं, they typically allege that failure by ship to ventilate correctly resulted in development of condensation. अब सेम स्टोरी देख लीजिए कार की, अगर आपने एसी नहीं चलाया या कुछ उसको ठीक से वेंटिलेशन नहीं किया, इसके लिए स्वेट फॉर्मेशन हुई और आपका एक्सीडेंट हो गया, क्या जी मेरे को दिख ही नहीं रहा था आगे, तो वेंटिलेशन क्यों नहीं की बराबर से. सो सेम थिंग है, इफ यू डू नॉट डू प्रॉपर वेंटिलेशन, देयर विल बी अ कंडेंसेशन, देयर विल बी अ स्वेट फॉर्मेशन कॉजिंग द कार्गो टू डैमेज. उस चीज़ को हमने बचाना है. Now, to defend cargo deterioration claims, it is necessary for the vessel to produce records showing that customary ventilation routines were followed. अब आपकी लॉग बुक आ जाती है पिक्चर में. कहने से तो कुछ है नहीं कि नहीं जी नहीं हमने तो वेंटिलेशन की थी, फिर भी कार्गो खराब हो गया. सो सारा का सारा आपका रिकॉर्ड चेक होता है लॉग बुक में. सो दैट्स वाई नाउ व्हेन यू आर ऑफिसर, जैसे आपको चीफ ऑफिसर कैप्टन साहब बताएंगे, जैसे भी है आपको भी नॉलेज होनी चाहिए. सो वी हैव टू मेक एन एंट्री कि हाँ भाई ड्यूरिंग द वॉयज वेंटिलेशन वाज कैरिड आउट और नॉट कैरिड आउट, वाज इट रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड. तो ये सारे के सारे एक प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए. व्हाट इज द प्रूफ ऑन द शिप? लॉग बुक. शुड द नेसेसरी एविडेंस बी मिसिंग और इनकम्प्लीट, इट इज ऑफन डिफिकल्ट आपका क्लेम को कि नहीं हमने काम किया था, तो वो मुश्किल हो जाता है. तो सबसे पहली चीज़ तो आपने जो भी काम शिप पे, ऑफ कोर्स नाउ यू हैव बीन स्टडीइंग इनफ कि व्हाटएवर यू डू यू हैव टू रिकॉर्ड. अब स्वेट फॉर्मेशन जो है, स्वेट फॉर्मेशन, सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि यार स्वेट फॉर्मेशन है क्या चीज़. हाउ डज दिस स्वेट फॉर्म्स? स्वेट इज फॉर्म्ड व्हेन द वाटर वेपर इन द एयर condenses out into water droplets when the air is cooled below its dew point. तो अगर मेट्रोलॉजी में भी इसी के साथ इसको पढ़ेंगे कि यार ये ठंडी कैसे होती है, इसका इफेक्ट क्या है, इसके मॉइस्चर कंटेंट पे, इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है विद द टेम्परेचर. सो सेम थिंग इज द स्वेट इज फॉर्म्ड व्हेन द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस आउट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स व्हेन द एयर इज कूल्ड बिलो इट्स ड्यू पॉइंट. द वाटर ड्रॉपलेट्स मे बी डिपॉजिटेड ऑन टू द शिप स्ट्रक्चर. अब ये जो ड्रॉपलेट्स फॉर्मेशन होगी या तो आपकी शिप साइड अंदर की तरफ से शिप साइड पे भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको कहा आपकी कार के कांच के ऊपर, और इट कैन बी ऑन द कार्गो ऑल्सो, कि अपना स्टील कार्गो उसके ऊपर भी ये ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो सकते हैं. नाउ इफ इट इज फॉर्मिंग ऑन द शिप स्ट्रक्चर देन वी कॉल इट शिप स्वेट, एंड इफ इट इज फॉर्मिंग ऑन द कार्गो देन वी कॉल इट अ कार्गो स्वेट. तो ये आप चीज़ को समझना कि यार स्वेट फॉर्मेशन होती कैसे है एंड हाउ वी डेजिग्नेट दिस और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्वेट, that is ship sweat and cargo sweat. बहुत simple है. Now to avoid this sweat and its effects, it is imperative that wet and dry bulb temperatures of air entering and the air contained in the cargo compartment. अब जैसे आपने कहा था कि आउटसाइड एयर का टेम्परेचर और इनसाइड एयर का टेम्परेचर में फ़र्क होगा, तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है. So this is what it is basically, the air which you are putting into the compartment and what is the air which is already inside the compartment. So अगर उनमें फ़र्क हुआ we will see that. So then इसको कंट्रोल करना, इसको चेक करना जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है. Now in general humidity is the quantity of water vapor. Now humidity है क्या चीज़? It's basically a quantity of water vapor present in atmosphere. Now the quantity of water vapor in atmosphere is variable both in time and space. चेंज होती रहती है. ये तो है नहीं कि हवा में एक ही मॉइस्चर कंटेंट जो है सेम रहेगा. नाउ यू सी nowadays the air is dry. After 1 or 2 months you will see there will be lot of moisture in the air. जैसे मानसून आने लगेगा, so you see that lot of moisture comes, air becomes very humid. So the actual water vapor content of a sample of air may be expressed by number of terms. But हमें जो important है, we will study that कि humidity is the amount of water vapor contained in a parcel of air. And relative humidity, now what is relative humidity? कई बार इस पे भी नोट्स आ जाते हैं, मैट में भी आ जाते हैं, इसमें तो नहीं आएंगे, मैट में आ जाते हैं
So what is write short notes on relative humidity? Now, relative humidity is a percentage ratio of actual water vapor contained in a given sample of air to maximum quantity of water vapor that sample can hold at that temperature. Simple. अब उस सैंपल ऑफ एयर की जो कैपेसिटी है हो सकती है काफ़ी हो, बट प्रेजेंटली उसके अंदर कितना वाटर वेपर है मल्टीप्लाइड बाय 100, सो इट गिव्स यू द परसेंटेज दैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी. नॉर्मली आपने देखा होगा, वी आर सेइंग इट इज 70%, 60%, 90%. एंड जब हम ये कर रहे थे ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मामीटर की ड्यू पॉइंट निकाल रहे थे, वहाँ पे भी एक टेबल है, ड्यू पॉइंट के साथ भी एक टेबल होता है आपके. मैनी बुक्स हैव गॉट, जहाँ से आप रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल सकते हो जस्ट बाय सीइंग द टेम्परेचर डिफरेंस इन द ड्राई एंड वेट बल्ब. इफ द टेम्परेचर ऑफ अ पार्सल ऑफ एयर इंक्रीजेस, इसको बड़े ध्यान से समझिए. इफ द टेम्परेचर ऑफ अ पार्सल ऑफ एयर, एक पार्सल ऑफ एयर क्या है? आपके सराउंडिंग जो एयर है, दैट इज व्हाट वी कॉल अ पार्सल ऑफ एयर. अगर उसका टेम्परेचर ऊपर जाता है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर ऑल्सो इंक्रीजेस. इट्स कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर इंक्रीजेस. नाउ अगर आप देखिए इसी इक्वेशन में, अगर ये कैपेसिटी, ये डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, इफ द कैपेसिटी इंक्रीजेस दैट मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है डिक्रीज कर जाएगी. इफ नो वाटर वेपर इज अलाउड टू कम इन और गो आउट ऑफ सैंपल ऑफ एयर, इट्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज. तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. इन अदर वर्ड्स, एयर बिकम्स रिलेटिवली ड्रायर, and in contrast when the parcel of air is cooled, its relative humidity increases. So nutshell, relative humidity basically is inversely proportional to temperature. If the temperature increases, relative humidity decreases, and if the temperature decreases, the relative humidity increases. तो ये चीज़ आपने देखनी है. Now it's a good sample here just for your understanding. Now if you see this here, how this is becomes inversely proportional. ये आपका वाटर वेपर है, इट इज फुली सैचुरेटेड. जितनी इसकी होल्डिंग कैपेसिटी थी उतना ही वाटर वेपर आ गया. सो वी कॉल इट इज 100%. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100% एट सम टेम्परेचर से 10 डिग्री. अब हम इस पार्सल का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं. ये जो एयर आपके सराउंडिंग एयर, उसका टेम्परेचर सपोज इंक्रीज हो जाता है से 20 डिग्री सेंटीग्रेड. अब उसकी कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर जो ज़्यादा हो जाएगी, but the amount of water vapor which is inside, no water vapor allowed to go in and no water vapor allowed to come in, वो क्वांटिटी तो सेम रहेगी. अब अगर आप इसकी रेशो देखो तो ये आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 52% आएगी. सिमिलरली अगर इसका टेम्परेचर मैं 30 डिग्री करता हूँ तो इसका जो कैपेसिटी टू होल्ड वाटर वेपर है वो इंक्रीज हो गई सो मच, बट अगेन वाटर वेपर कंटेंट जो है उतना ही रहा. सो यू सी द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, amount of water vapor present to the capacity it can hold. तो यहाँ पे relative humidity again percentage wise 28% रहे. So this is a good sort of example to show how the relative humidity changes with temperature. Dew point. अब dew point क्या चीज़ है? कि dew point is when a sample of air is progressively cooled, its relative humidity will increase. So the temperature at which the relative humidity becomes 100%. जब relative humidity 100% हो गई, then the air becomes fully saturated, and it is known as the dew point. At this temperature पे this air becomes fully saturated. This is called dew point. अब इसके बाद अगर आपने इसको ठंडा किया और ठंडा हुआ, then all the water vapor will condense into water droplets. So ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि yes, dew point means as the sample is getting progressively cooled, as the temperature of the sample of air is reduced, उसकी relative humidity जो है बढ़ती जाती है. And when it becomes 100%, we call it a dew point has reached. Further cooling will condense this water vapor into the water droplets. It is a temperature at which a parcel of air, if cooled, becomes saturated and water vapor becomes to condense out. अगर हमने उसको और ठंडा किया. Now this dew point varies depending on how much water vapor the air contains, with air having higher dew point than the dry. So dew point जो है वो भी आपको थोड़ा सा समझना important. So when large droplets of condensation form, they are deposited onto the surfaces as dew. When smaller droplets form, they remain suspended in the air as mist or fog.
If the dew point is below freezing temperature of water, the water vapor turns directly into frost by sublimation. तो ये तो थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, बट इतना समझना जरूरी है what is dew point, and if the air is cooled below dew point, then you see the condensation or sweat formation starts taking place. So I hope यहाँ तक all clear. Any doubts up to here? क्या कहते हैं, all clear up to here? Yes, sir. चलो, All good. done. Okay, sir. Yeah, good. Yes, sir. Clear. Okay, very good. Now comes the sweat formation. कि यार अभी sweat जो है, first of all हमने देख लिया, sweat is formed when the water vapor in the air condenses out into water droplets when the air is cooled below its dew point. अब types of sweat भी हमने देख लिया, cargo sweat and ship sweat. Now let's see how this cargo sweat can take place and when the ship sweat can take place. अगर हमने समझ लिया, then only I will be able to avoid, isn't it? अभी हमें पता लग गया है कि यार ये फॉर्म कैसे होता है, then I can take the precautions for not to form. Let this sweat should not form in the cargo holds. Now cargo sweat वो कहता है, cargo sweat refers to condensation which may form on the exposed surfaces of the stow. Stow means cargo. Cargo sweat refers to condensation which may form on the exposed surfaces of the stow as a consequence of large amount of warm moist air being persistently introduced into a hold containing substantially colder cargo. So ये तो लिखने के लिए, समझने के लिए कि ये जो आपकी वार्म एयर है, आपने वार्म एयर इंट्रोड्यूस की, अंदर आपका कार्गो जो था वो ठंडा था. एग्जांपल स्टील ले लो, यू लोडेड स्टील इन यूके एंड यू आर कमिंग टुवर्ड्स इंडिया. अब आपका जो स्टील है वहाँ पे तो ठंडा था, एटमॉस्फेयर वाज मे बी 6 डिग्री 7 डिग्री. अब रास्ते में जब आप आ रहे हो तो आपके बाहर का जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो गर्म होनी शुरू हो जाती. अब ये गर्म हवा जो है, इफ़ यू इंट्रोड्यूस इनटू द होल्ड बाय फ्लैप्स और वेंटिलेशन या कुछ अगर कर दिया तो क्या होगा, व्हेन दिस वार्म एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द कूलर सरफेस. आगे भी कार वाली बात की, गर्म अंदर की गर्म हवा ठंडे कांच को टच करेगी, इमीडिएटली ठंडी होगी और कंडेंस कर जाएगी. तो सेम थिंग टेक्स प्लेस हियर. व्हेन इट इज कमिंग इन कांटेक्ट विद द कोल्डर, कार्गो गेट्स एंड इट स्टार्ट्स गेटिंग कूल्ड. ठंडा होने शुरू हो जाती है जैसे वो ठंडे स्टील को पकड़ेगी. Now when it is cooled below its dew point, water droplets will condense onto the cargo which is known as the cargo sweat. So समझने के लिए भी या लिखने के लिए भी, yes, what is cargo sweat? First you explain it is due to this and then how it forms. When the warm moist air coming in contact with the colder cargo, then it will start immediately getting condensed onto the cargo. We call it a cargo sweat. Now what is ship sweat then? Now ship sweat refers to condensation which forms directly on the vessel structure. अब ये कार्गो पे नहीं है. नाउ दिस इज फॉर्मिंग ऑन द वेसल स्ट्रक्चर. आपकी शिप साइड होगी, हैच कवर की इनसाइड होगी, वहाँ से ड्रिपिंग्स हो सकती हैं. व्हेन द एयर विद इन अ होल्ड मेड वार्म एंड मॉइस्ट बाय द कार्गो. अब आपकी जो अंदर की जो सरफेस है, जो स्टील का जो सरफेस है आपका इनसाइड ऑफ द होल्ड, इट इज प्रीटी वार्म. क्यों? कि अंदर आपके पास गर्म कार्गो था, isn't it? अब आपने इंडिया में कार्गो लोड किया तो कार्गो भी गर्म है एंड इनसाइड ऑफ द कार्गो होल्ड आप एंटर करते हैं बहुत गर्म है. व्हाई? बिकॉज वी लोडेड कार्गो इन द वार्म क्लाइमेट. नाउ व्हेन दिस कम्स इन कांटेक्ट विद द कोल्ड सरफेसेस एज द वेसल मूव्स इनटू द कूलर क्लाइमेट्स. अब जो जहाज जो है ठंडे एरिया की तरफ जाना शुरू है, बाहर का पानी भी ठंडा है एंड शिप साइड जो है बाहर से ठंडी होनी शुरू हो जाएगी. isn't it? जैसे सेम कि कार का शीशा था बाहर से ठंडा होना शुरू हो गया बिकॉज आउटसाइड वाज कोल्ड एंड अंदर जो आपका कार्गो भी गर्म था, आपका ब्रेथ भी गर्म था. नाउ व्हेन दिस वार्म एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द कूलर स्टील सरफेस, वो स्टील का हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ठंडा कैसे हुआ? बाहर से, बिकॉज हवा भी ठंडी थी, पानी भी ठंडा था जिसमें जहाज चल रहा था. सो व्हाट यू सी दिस, when this warm moist air comes in contact with the cooler steel structure, immediately ठंडी होनी शुरू हो जाएगी and it will come to the dew point and the steel surface is still cool. It will keep on cooling the air and आपकी जो air है
that water vapor will condense into the droplets onto the ship side. वो जहाँ वो touch कर रही है, that is we call a ship sweat. So on the warm air inside the hold, when comes in contact with the ship side and deck, gets cooled below its dew point, and it gives out water vapor which condense in the form of water droplets on the ship side and deck. So this is known as basically ship sweat. So जो कार्गो पे फॉर्म हुआ वो कार्गो स्वेट, जो शिप साइड पे फॉर्म हुआ ऑन द इनर साइड्स ऑफ द योर शेल प्लेटिंग हैच कवर्स, उसके ऊपर, उसे हम कहते हैं दिस इज द शिप स्वेट. सो कार्गो में बी डैमेज बाय ओवरहेड ड्रिफ्ट्स बाय कांटेक्ट विद द स्वेट व्हिच हैज फॉर्म्ड ऑन द शिप साइड और बाय कंडेंस्ड वाटर व्हिच मे accumulate at the bottom of the hold like this. Even bulk cargo you see this. अब यहाँ से सारी ड्रिपिंग आ जाएंगी. और इसको देख के मेरे को एक याद आता है, आई वाज ऑन अ बल्क कैरियर सो वी क्लीन द होल्ड्स. तो एक होल्ड हमने क्लीन करके, जो जैसे जैसे क्लीन हो रहा था तो बॉसर ने उसको बंद कर दिया. तो उसको टोटल कंप्लीट बूबी हैच एवरीथिंग पूरा बंद कर दिया एट सी ओनली. सो एक दो दिन के बाद हमने पोर्ट में आना कि जो बाकी जिसमें काम चल रहा था वो थोड़े थोड़े हैचेस जो थे खोल के रखे हुए थे, कोई फाइनल क्लीनिंग हो रही थी, कुछ हो रहा. तो द मोमेंट, अब ये जो होल्ड था नंबर 6 होल्ड जिसको कम्प्लीटली बंद करके रखा था, द मोमेंट वी रीच द पोर्ट, कि बाकी भी आस्ते आस्ते ठीक है हमने थोड़े थोड़े खोल के रखे, इसको खोला नहीं, इसको बंद ही रखा. सो व्हेन वी केम इन द पोर्ट, अब इस हैच को खोला, सर्वेयर वाज देयर ऑन द डेक कि चलो लेट्स हैव इंस्पेक्शन. तो वो सुन बोला ओके भैया ओपन द होल्ड्स. इसको खोला तो इट वाज रेनिंग लाइक एनीथिंग. क्यों? वी आर गोइंग टू ग्रेट लेक्स, बाहर के अब हवा तो ठंडी थी. अब इसको हमने होल्ड को कंप्लीट बंद किया होता, सील किया होता, टाइप मूवी एच एवरीथिंग वाज क्लोज, वेंटिलेटर सब कुछ बंद थे. तो अंदर की जो गर्म हवा थी एंड बाहर की ठंडी हवा पूरी, इट वाज ड्रिपिंग. सो द होल्ड बिकेम एब्सोल्युटली लाइक पूरा का पूरा. अब उसको सुखाएं कैसे लोडिंग के लिए? सो दिस टाइम लाइक ऑन दिस बल्क कैरियर आल्सो दिस प्रॉब्लम इज वेरी कॉमन. बट अगर आप उसको खोल के रखते आस्ते आस्ते, अंदर बाहर की जो हवा थी, अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर सेम हो जाना. सो दिस आल्सो कैन टेक प्लेस सम टाइम. Now theoretically all the decisions regarding cargo ventilation should be based on dew point temperatures, comparing the dew point of the ambient air means outside air with the dew point of the air inside the hole. अभी हमने देख लिया स्वेट क्या चीज़ है, स्वेट फॉर्मेशन कैसे होती है. इट इज़ ड्यू टू द ड्यू पॉइंट. नाउ इट इज़ बेसिकली द ड्यू पॉइंट विच इज़ गोइंग टू control your sweat formation. Now if I have a knowledge that what is the dew point of outside air and what is the dew point of inside air, then I know whether to ventilate or not to ventilate. Now given most of the ships are customarily equipped with wet and dry bulb thermometers, अब ये dew point हम कैसे निकालें? उसको देखने के लिए सिंपल हमारे पास इक्विपमेंट दिया हुआ, isn't it? Most of you must have used on the bridge. ड्राई एंड वेट बल्ब सबने यूज़ किया होगा, लॉग बुक में रीडिंग भी लिखी होगी, नहीं सम टाइम ऊपर से देख के कॉपी कर दी होगी. बट दिस इज इम्पॉर्टेंट, इज़न्ट इट? सो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है कि अगर आपने देखो रिकॉर्ड ठीक नहीं रखा तो कल को कुछ गड़बड़ हुई तो दे विल चेक द रिकॉर्ड, दे विल चेक द लॉग बुक. सो देन दे विल सी यार टेम्परेचर तो इतना है. तो इसके लिए ये टेम्परेचर जो है बिल्कुल ठीक लिखने हैं कि ड्राई एंड वेट बल्ब का हमने टेम्परेचर लिया. आई वेंट टू द कोई भी आपकी मैरिनर्स हैंडबुक जिसके अंदर ड्यू पॉइंट जो है टेबल दिया होता है, द डिप्रेशन ऑफ द वेट बल्ब, की वेट बल्ब कितना कम है, 1 डिग्री 2 डिग्री फ्रॉम द ड्राई बल्ब, इट विल गिव यू द ड्यू पॉइंट एंड द ह्यूमिडिटी ऑल्सो. आउटसाइड एयर का ड्यू पॉइंट निकालना तो बहुत आसान है. हाउ टू फाइंड आउट द ड्यू पॉइंट ऑफ द होल्ड? अभी होल्ड के अंदर जो हवा उसका ड्यू पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? एनीबॉडी? बाहर का तो ठीक है, हमने ड्राई एंड वेट बल्ब जो ब्रिज विंग पे लगा हुए थे उससे देख लिया. अभी होल्ड की जो एयर है उसका ड्यू पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? ड्यू पॉइंट मीटर आता है. हाँ जी सर, ड्यू पॉइंट मीटर. या ओके, सम लेटेस्ट शिप्स दे मे गिव यू ह्यूमिडिटी कंट्रोल और यू नो ड्यू पॉइंट एंड टेम्परेचर सेंसर्स आर देयर, बट अदरवाइज इफ यू थिंक देयर इज नथिंग, पुराने जहाज पे आप काम कर रहे हो वहाँ तो कोई सेंसर नहीं, कोई कुछ नहीं है. तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए ना. बेसिक्स अगर हमारे स्ट्रॉन्ग है कि ठीक है सर सेंसर काम कर रहा है बहुत अच्छा है, ऑटो पायलट काम कर रहा है बहुत अच्छा, नहीं तो मैनुअल स्टेयरिंग नहीं आती
प्रॉब्लम आ जाएगी, इजंट इट? तो इसीलिए एनीथिंग कम्स टू योर माइंड कि यार ये जो कार्गो होल्ड है इसके अंदर की हवा का ड्यू पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं? सर बर्लिंग साइक्रोमीटर। हाँ देखो, गुड। व्हाट्स योर गुड नेम बच्चे? जीबी सर दिव्य कुमार सक्सेना। दिव्या, या ओके। या से देखो, दिव्या के पास आइडिया आ गया है कि यस मस्ट हैव सीन दैट्स कॉल्ड रेलिंग साइक्रोमीटर, इजंट इट? सो रेलिंग साइक्रोमीटर, ठीक है, जब मेट की बारी आएगी वहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको, रेलिंग साइक्रोमीटर क्या होता है। तो रेलिंग साइक्रोमीटर इज लाइक अगेन जैसा आपका हाइड्रोमीटर तो फिक्स है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ पोर्टेबल आपने पॉकेट में डाला एंड यू जस्ट पुट 1 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन वन ऑफ द थर्मामीटर्स जिसके ऊपर थोड़ा कपड़ा लगा होता है, एंड देन यू स्टार्ट टर्निंग दिस, एंड यहाँ से भी आपको ड्राई एंड वेट बल्ब का टेम्परेचर मिल जाएगा, एंड फाइनली यू कम टू द सेम बुक एंड सी डिप्रेशन ऑफ द वेट बल्ब, एंड यहाँ से भी आपको ड्यू पॉइंट मिल सकता है। ले जाना भी आसान है, पॉकेट में डाल के ले जा सकते हैं। वो जो ब्रिज फिलिंग पे लगा उसको तो हम नहीं ले जा सकते। So swinging the instrument inside the hole until the wet and dry bulb stops falling and remain steady. अब आपके पास नॉलेज आएगी कि यार अंदर का ड्यू पॉइंट भी पता है और बाहर का ड्यू पॉइंट भी पता है। नाउ वेंटिलेशन of decision making will be easy. All reading should be taken well away from any air inlets, ensuring only hole temperature is tested, and enclosed space entry procedures of course. आपके पास sensors हैं, very good, nothing to do. You can immediately come to know what is the inside temperature, what is the dew point, and this may then be determined using a dew point table. Now wet and dry thermometer, when using traditional wet and dry thermometer, accuracy of the dew point temperature will depend on the condition. चलो वो हम वेट में पढ़ेंगे डिटेल में कि इसकी प्रिकॉशंस क्या क्या है वेट एंड ड्राई की। जहाँ तक वेंटिलेशन है अभी हमें ड्यू पॉइंट पता है। नो ड्यू पॉइंट रूल क्या कहता है? वेंटिलेट if the dew point of air inside the hold is higher than the dew point of the air outside the hold, and do not ventilate if the dew point of the inside air is lower than the dew point of the outside air. तो ये देखो कितना सिंपल तरीका है। तो इसको याद करने के लिए भी थंब रूल, आउटसाइड हॉट वेंटिलेट नॉट, एंड आउटसाइड कोल्ड वेंटिलेट द होल्ड, इजंट इट? सो वेंटिलेशन के तरीके अलग अलग हैं, वो भी हम देखेंगे कि आप हमारे शिप में हमारे पास वेंटिलेशन के क्या क्या मेथड्स हैं, व्हाट ऑल मेथड्स, व्हाट ऑल इक्विपमेंट वी हैव फॉर वेंटिलेशन। बट यहाँ तक आपको एटलीस्ट समझ आ गया कि हाँ यार व्हेन टू वेंटिलेट एंड व्हेन नॉट टू वेंटिलेट, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड क्यों हम वेंटिलेट करें क्यों ना करें, जस्ट फॉर द सो दैट देयर शुड बी नो स्वेट फॉर्मेशन। स्वेट को हमने अवॉइड करना फॉर्म होने से, एंड देन वी नो हाउ टू कंट्रोल दिस। तो ये तो आपके आगे मेथड्स। नाउ इन ब्रॉडर टर्म्स इट इज ऑफन पॉसिबल टू एस्टिमेट वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट्स इन एडवांस by considering the climate changes likely to be encountered during the voyage. जैसे मैंने आपको बताया you are coming from England to India, so you know यार इंग्लैंड में अभी ठंड है, आस्ते आस्ते जैसे जैसे हम मेडिटेरियन रेड सी इंडिया की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर्स आर गोइंग टू गो अप। So similarly we know whether to ventilate or not to ventilate. So following examples indicate what may be expected on passage, but do not await the need to detailed monitoring of the readings. So इसमें होता है एक तो hygroscopic products. Now what is hygroscopic products? They are like natural products. They have a natural moisture content and are mainly of plant origin. जैसे आपका हो गया grain, rice, flour, sugar, cotton, tobacco, coffee, tea. इनको हम hygroscopic products कहते हैं. So they may retain, absorb or release water vapor, and excessive amounts of inherent moisture may lead to significant self-heating and moisture migration within the cargo. So hygroscopic products and non-hygroscopic products like your steel, other commodities, now they also can be damaged if they are stored in the moist environment, and others may be harmed if using a hygroscopic material, for example wood and pulp. अब हमारे पास है कि ये जो आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, हाइग्रोस्कोपिक प्रोडक्ट्स हैं, कोल्ड टू वार्म क्लाइमेट में अगर हम जाते हैं तो क्या होगा? स्टेबल कोल्ड कार्गो इज कैरिड टू अ वार्म क्लाइमेट, isn't it? So ventilation will always be unnecessary कि हम कोल्ड से अब हम वार्म की तरफ जा रहे हैं. So indeed in some circumstances ventilation may lead to cargo damage, whereas hygroscopic products warm to cold climate.
उसमें क्या होगा, विगोरस सरफेस वेंटिलेशन ऑफ द कार्गो स्पेसिस विल ऑलमोस्ट सर्टेनली बी रिक्वायर्ड ड्यू टू लाइक्लीहुड ऑफ शिप स्वेट डेवलपिंग, के अंदर की एयर को हम आस्ते आस्ते चेंज करते जाएं ताकि अंदर की जो गर्म हवा है वो गर्म ना रहे, बिकॉज स्टील ठंडा होने वाला है. सो दिस इज बेसिकली द एग्जांपल of your voyages. So ventilation is never, for non-hygroscopic cargo, ventilation is never required. Cold cargo sweat is liable to occur if warm moist air comes in contact with the cold cargo. Therefore, hold should be usually remain sealed to allow the cargo and internal air to warm gradually during the voyage. तो ये तो थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा. So same thing is कि जैसे एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए इफ़ वी आर कमिंग फ्रॉम कोल्ड टू वार्म, सो आई नो यार मेरे अंदर का जो टेम्परेचर है, कार्गो का टेम्परेचर है ठंडा है, इजंट इट? नाउ आई कैन नॉट इंट्रोड्यूस द वार्म एयर बिकॉज वो ठंडी हो जाएगी. सो हम स्लोली वी लेट द इनसाइड टेम्परेचर लेट इट कम अप स्लोली. मे बी कई बार थोड़ा सा नेचुरल वेंट, थोड़ा सा उसको, ताकि अंदर का जो उसको फोर्स्ड वेंटिलेशन नहीं करनी है. आपने वेंटिलेट किया तो सारी की सारी ये गर्म हवा जो है इमीडिएटली कूल ठंडी होगी और वेंटिलेशन स्वेट फॉर्मेशन हो जाएगी. तो यू आर कैरिंग स्टील, वेरी कॉमन, यूरोप से हम स्टील लेके आते हैं तो वो ख़राब नहीं होना चाहिए, इजंट इट? बट प्रॉब्लम आती है कंबाइंड कार्गोज कि जब आपने दोनों टाइप के कार्गो, एक कार्गो को वेंटिलेशन चाहिए, एक को चाहिए नहीं. बट ये सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिकली तो दीज आर ऑल सॉल्व बिकॉज ऑफ द कंटेनराइजेशन, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती. तो ये तो एक एग्जांपल है कि पेपर शीट का. नाउ इट शुड बी नोटेड इनडिस्क्रिमिनेट वेंटिलेशन ऑफन डज मोर हार्म देन नो वेंटिलेशन. कई बार हम वेंटिलेशन हमने पढ़ लिया और हम उसके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के कि चलो जी वेंटिलेट करो ही करो, एंड समटाइम इट डज मोर हार्म देन नो वेंटिलेशन. सो ये भी आपने चेक करके रखना है, देखना है. कई बार वेदर ख़राब होता है, सो प्लीज़ क्लोज ऑल द वेंट फ्लैप्स. ये नहीं है कि अंदर स्प्रे से ही पानी जाना शुरू हो जाए कि वेंटिलेशन के चक्कर में. सो इट्स अ बिग जॉब. अब ये तो है नहीं, शिप तो छोटा नहीं है, 7-8 होल्ड्स आर देयर. सो उनके वेंटिलेटर फ्लैप्स खोलने बंद करने, सो इट्स अगेन अ बिग जॉब, स्पेशली यू नेवर नो वेदर कब ख़राब हो जाए. तो ये चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है. सो शुड बी नोटेड वेरिएशन इन द एंगल्स ऑफ वेंटिलेटर्स फ्रॉम विंड कॉज वेरी डिफरेंट रेट्स ऑफ एयर फ्लो. तो it is just like if you have this natural ventilation, see just changing the direction of these ventilator flaps, how it changes the effect of the under ventilation, where sometimes we have to carry surface ventilation and sometimes we carry through ventilation, means पूरी नीचे तक जो है पूरी की पूरी हवा वेंटिलेट होनी चाहिए. यहाँ पे आपको कोई मशीनरी नहीं चलानी, कोई कुछ नहीं चलानी. नाउ द विंड इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड जो आपका विंडवर्ड वेंटिलेटर उसको आपने उल्टा कर देना, उसका मुंह इस तरफ. नाउ द विंड विल कम फ्रॉम हियर, इट विल एंटर दिस लीवर्ड वेंटिलेटर एंड देन इट विल बेसिकली सर्कुलेट एंड इट विल गिव यू पूरी की पूरी थ्रू वेंटिलेशन. पूरी नीचे तक हवा जाएगी एंड देयर विल बी अ सॉलिड फ्लो ऑफ एयर एंड आपकी नेचुरल वेंटिलेशन होती जाएगी, एयर एक्सचेंज होती जाएगी. अब दूसरे केस में है कि अगर मेरे को सिर्फ सरफेस वेंटिलेशन देनी है, फिर मैं इसका फेस जो है आपका विंड की तरफ कर देता हूँ. ये तो है थ्रू वेंटिलेशन के लिए ऐसे कर दी. अब मेरे को सिर्फ जैसे एग्जांपल कोल एंड ऑल दैट, हमें सिर्फ सरफेस वेंटिलेशन चाहिए होती है, हमको नीचे एयर नहीं डालनी. सो दैट टाइम व्हाट वी डू, ये वेंटिलेशन है, इसका फेस जो है लेट इट बी फेस टुवर्ड्स द विंड एंड इसका जो फेस है इसको अपोजिट कर दो. फिर क्या होगा, विंड इसमें से एंटर करेगी एंड इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन बिलो इट विल फाइंड अ शॉर्टकट बिकॉज इसका फेस इस तरफ है और यहाँ से बाहर निकल जाएगी. सो यू फाइंड ओनली सरफेस एयर जो है सरफेस की ही वेंटिलेशन होगी. आपकी गैसेज हैं कुछ भी हैं उनको निकालने के लिए दिस नेचुरल प्रोसेस इज़ वेरी कॉमन. तो आजकल तो मैकेनिकल वेंटिलेटर्स हैं, तो इनकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है. व्हेनेवर यू वांट टू डू सप्लाई, यू वांट टू एग्जॉस्ट एनीथिंग, यू कैन डू बाय द मैकेनिकल. बट नेचुरल प्रोसेस जो था इट यूज टू बी मोर सिंपल, बेटर. बट सिर्फ इन वेंटिलेटर्स को आपको अच्छी तरह से ग्रीस व्रीस करके रखना पड़ता था. ये तो जैम हो जाएंगे, घूमते ही नहीं है. एनीबडी हैज सीन दिस नेचुरल वेंट्स ऑन द शिप? के दूसरे ही थे आपके पास वेंटिलेटर फ्लैप्स एंड फोर्स्ड वेंटिलेशन? सर नेचुरल वेंटिलेशन था सर.
सो दीज आर अगेन नेचुरल वेंटिलेशन है, उसको खोलना बंद करना तो नेचर का अपना ही प्रोसेस, तो उससे भी आप कर सकते हो और कार्गो को स्वेट फॉर्मेशन से बचा सकते हैं। तो वेंटिलेशन में ऑल्सो सर्व टू रिमूव एनी गैसेस। अब अभी वेंटिलेशन का ये तो था फॉर द पर्पस ऑफ स्वेट फॉर्मेशन, कि यार हम स्वेट फॉर्मेशन ना हो। वेंटिलेशन जो है मैनी टाइम्स यू यूज फॉर रिमूविंग द अदर गैसेस ऑल्सो। जैसे मैंने आपको कोल का एग्जांपल दिया कि कोल जब लोड करते हैं उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन जो है वो निकलती है, उसको भी हमें निकालना पड़ता है। सो शिप्स आर फिटेड विद ईदर नेचुरल और मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम। Now, in addition to minimizing the onset and degree of sweat, ventilation may also serve to remove, thin and disperse any gases which some cargoes may emit. So, इसके लिए आपको कोई बाई चांस क्वेश्चन पूछे कि यार ये जो वेंटिलेटर लगे इनका क्या पर्पस है, तो नाउ यू नो कि सर वेंटिलेशन कैन बी डन फॉर टू अवॉइड स्वेट फॉर्मेशन एंड सेकेंड इट कैन बी यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैसेस। इसका गुड एग्जांपल आई थिंक नो नीड फॉर मी टू मेंशन, you may have gone inside the holds, sometime tank inspection के लिए भी आप hold के through जाते हो, and that time also you start the ventilation at least 1-2 hours before, isn't it? So वो purpose क्या है हमारा कि hold तो खाली है but just to remove all the gases, isn't it? So we remove any gases ताकि अंदर fresh air है, ऑक्सीजन भी है, कोई टॉक्सिक कोई गैस नहीं है। So please be very very careful, चाहे हमें कार्गो का टॉपिक है, but any time in future whether you are third officer, second officer, chief officer, make sure nobody goes inside the hold without it is being ventilated. Okay, so आपको कोई भी है प्रेशर आएगा नहीं यार जल्दी है टाइम कम है चलो चलते हैं, नो। ओके, आर्गू नहीं करना किसी के साथ, किसी को पढ़ाना नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डेंजर है। आपको ये मालूम अपने माइंड में दिस इज द यूज ऑफ स्टडी, इसकी एप्लीकेशन होनी चाहिए, इजंट इट? यार वेंटिलेशन हमने पढ़ा था, इट इज फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द गैसेस, सो लेट्स यूज दैट। द सरफेस वेंटिलेशन इज कैरीड आउट विद विंडवर्ड वेंट्स टर्न इनटू द विंड एंड लीवर्ड टुवर्ड्स द विंड। सो दिस इज नेसेसरी फॉर सर्टेन कार्गो सच एज कोल वेयर ओनली सरफेस ऑफ द कार्गो इज टू बी वेंटिलेटेड। सो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आती हैं जब आप चीफ ऑफिसर बनोगे, बट स्लोली स्लोली आपकी ये नॉलेज जो है आपको काम आएगी। Now, given the sensitive nature of many hygroscopic products, the possibility of sweat effort should be made to ensure such cargoes do not come into contact with the hold or steel work। वो हमने देख लिया, डनेज, साइड बैटन्स, ठीक है, ताकि स्वेट फॉर्मेशन हो ही ना। कार्गो अगर आपका सीधा शिप साइड को टच करेगा तो वैसे भी वो खराब हो जाएगा, स्वेट फॉर्मेशन होगी। नाउ यू सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवन योर डनेज और साइड बैटन्स। बैग्ड कार्गो intended for human consumption such as rice, beans and flour, it is important, very important. A lot of time you carry this cargo in bags on general cargo ships. For bagged cargo, rows of dunnage। अब bagged cargo अगर आपने लोड किया, अब ये तो है नहीं कि all the time we are going to load steel। जनरल कार्गो शिप्स में many time I carried cargo in bags, so वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि हाँ यार ये नहीं कि बैग लोड कर दिए कोई हवा की जगह ही नहीं, there is no place where the air can circulate. So for bagged cargo, rows of dunnage or bamboo poles should be laid in direction of the bilges to aid drainage, not more than 20 centimeters apart. And second layer should be placed on top at right angles. इसका 2-3 पर्पस है डनेज का कि हमारे मन में अब वेंटिलेशन चल रही है कि यार वेंटिलेशन हाँ जी For bagged cargo, rows of dunnage or या मैंने कहा आपकी क्या कह रहे थे बिल्जिस, व्हाट वाज दैट? sir, for bagged cargo rows. रोज ऑफ डनेज देखा नहीं हमने, डनेज पढ़ा था ना, डनेज, रोज ऑफ डनेज मींस डनेज वुड जो हम उसकी रोज नहीं बनाते। Yes sir, yes sir. याद है मैंने भेजा भी था आपको, पतली पतली डनेज आप नीचे रखते हैं, हाँ उसे कहते हैं रोज ऑफ डनेज। के बीच में गैप रखना है ताकि एक तो आपकी जो मॉइस्चर फॉर्मेशन हो वो निकल भी जाए, प्लस एयर सर्कुलेशन के लिए भी वो फायदेमंद होता है, isn't it? That's the use of your this dunnage। अब आप आ गया रिकॉर्ड्स।
ventilation records crucial, isn't it? Now you know that यार कल को बाई चांस कार्गो में कुछ गड़बड़ हुई, कार्गो खराब हुआ, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंपनी विल आस्क, यहाँ पे बताइए क्या क्या किया, वेंटिलेशन की थी, कब नहीं की थी, तो जरा बताइए। फिर सारा का सारा आजकल तो है कि इसकी फ़ोटो खींच के भेजो रिकॉर्ड अपनी लॉग बुक की। तो इसलिए मेक श्योर दैट वास्ता चीफ सर की सर इसकी एंट्री बनानी है, वेंटिलेशन कैरिड आउट, नॉट कैरिड आउट, नॉट कैरिड आउट तब भी लिख सकते हैं कि यस वेदर खराब है, वेंटिलेशन रिस्ट्रिक्टेड। सो इन द इवेंट ऑफ मॉइस्चर डैमेज, एविडेंस शोइंग द वेसल वेंटिलेटेड करेक्टली मे बी इंस्ट्रूमेंटल इन डिफेंडिंग एनी क्लेम्स। चलो भाई हमने वेंटिलेशन तो की थी, दिस वाज द टेम्परेचर। उसके बाद कार्गो को कुछ होता है तो हो सकता है कार्गो की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके करके वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आई, या पहले से ही वो रस्टेड था अंदर से तो नहीं हम देख सकते ना कार्गो। सो दीज आर द वेरी फ्यू थिंग्स। तो ये तो था आपका वेंटिलेशन का कि हाउ द वेंटिलेशन इफेक्ट्स एंड हाउ वी कैन रिड्यूस द डैमेज टू एनी कार्गो बाय अप्लाइंग दिस। अगर आपको आता है what all precautions or what all methods you will do to avoid damage to steel cargo due to condensation, तो उसमें ये नहीं लिखना शुरू कर देना, उसमें ठीक है कि yes at sea, now question is at sea, sometime I have seen, ठीक है हमने लोडिंग के टाइम में एक लाइन लिख सकते हो कि while loading first of all the precautions were taken that dunnage is laid and there is enough space around the cargo for air circulation, and then we will monitor the dew points, and as the dew point is there, फिर ये सारी आप हिस्ट्री लिख सकते हो कि how the cargo sweat or ship sweat formation will take place, and my idea is to avoid, and how I will avoid by checking the dew point, simple. okay, चलो ये तो था आपका इसके लिए वेंटिलेशन के लिए। And now we will do, you want to have a break now? So instead of doing this deck cargo, I would like to do your heavy lift. ठीक है, आज heavy lift कर लेते हैं, deck cargo हम timber के साथ करेंगे। तो heavy lift का भी question very common in your returns, that what is heavy lift, when you are loading heavy lift, what all precautions to take and what all things to see when you are loading a heavy lift, isn't it? So deck cargo मैंने लिखा था आज, but instead of deck cargo that we will do with the timber in the next session. आज थोड़ा heavy lift देख लेते हैं। okay, you want to have a break or should we start with the heavy lift? ब्रेक ले लेते हैं। चलो ब्रेक ले लेते हैं सर, फिर उसके बाद ओके सर, विल टेक अ ब्रेक। चलो ठीक है, या ओके बच्चे 11:15 we meet, हैं? okay, ओके सर। yeah, then we'll continue. Okay, sir. ओके सर, थैंक यू सर। yeah, Thank you, sir. yeah, थैंक यू सर। okay.